whose name केसी सिन्हा से मैं मिलने वाला हूँ। अगर आप लोग अराउंड रहेंगे, केसी सिन्हा कुम्हरार से खड़े हो रहे हैं, तो जनसुराज की तरफ से, तो मैं इन लोगों से मिलूंगा और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो प्लीज ज्वाइन मी। तो Okay, sir. I will send you in WhatsApp. ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। So Balaji, now let's today's class get started. And in our last, I think last three, since Balaji, have you started the recording? Okay. So I would request everybody to go on mute, and if you would like to say something, raise your hand, and and unmute yourself, and then you can ask your questions. So since last three classes, we were learning about reconnaissance. That is the one of the most important parts of ethical hacking thing. Until unless you don't know about your target, you don't know the in and out about your target, you will not be successful in doing further kind of penetration testing. So guys, make sure that your reconnaissance phase is very important. If you Just for an example, let's say that if you got an opportunity and assignment that you have to do a penetration testing on a firewall, okay, and you just start running random commands by running and start exploiting by using some of the hacking tools like Metaexploit, Nmap, Nessus, or any of those automated scanning tool like Qualys. You may not get that much of result if you don't know that what all ports are open over there, what all services are open over there, and what is open, what would be your target, how you will be you know preparing your further actions, further attacks. That will all depend on your reconnaissance phase. So अगर मान लो कि आपके पास एक एक फायरवॉल का अगर आपको पेन टेस्टिंग करना है और आपने सीधा सीधा वहां पे रन करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े कमांड्स, बड़े बड़े टूल्स, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको वापस आओगे, फिर देखोगे अच्छा क्यों नहीं चल रहा, ये पोर्ट ओपन है कि नहीं ओपन है। So to save your life, to make your attack precise and very focused, you need you need to know about that target. You need to know about that particular thing as much as possible you can. So this is why we took three classes on the reconnaissance phase. And Balaji, you had already given them all the tools, commands, and the places where they can learn and know about how to do the reconnaissance thing in cyber security world. Is that right, Balaji? Oh, absolutely. And another important thing is that somebody had asked in the WhatsApp message that about the Linux command, and whoever is asked, very nice. And Balaji has already appreciated you that you had asked about that how you can get all the commands. So of course there are thousands of links and the portals where you can get Linux command, but I think Balaji has already given you the most common commands, or maybe he will be sharing you the most common commands which will be used on the Linux. And any ethical hacker pen tester should know all these commands and why that command is there and what is the purpose of that command. You should all know. So well done, guys, and keep practicing, keep doing, keep repeating whatever is being taught by Balaji. And and if you're stuck anywhere, if you have any problem, feel free to talk to us. Okay. So Balaji, let's get started. Okay, one second.
So you have sent it. Can you please send it on my email? Because my WhatsApp is not working on this laptop. You have Longer period, like they had to analyze the metadata and all to get to us, but it will take time. So ये सर वो पढ़ा नहीं हूँ उसके बारे में तो बता दो नहीं रिसर्च करना पड़ेगा। guys. Can you see my screen? Presentation you can see. Okay. Here is your course agenda. Yes. Yes. Please go ahead. So today's we are going to cover scanning, TCP/IP communications, what all scanning techniques we are going to use, some other tools we will be using, and Wireshark is one of the most important tools to, you know, see what is going over the network, and then few scanning tools we will be going to understand, learn about it. Then one very important techniques in cyber security world and ethical hacking world, that how we can invest ourselves, and then and map scripting, how we can write the script, how we can execute the script and run the scripts. So Balaji, should I move on to next slide, or you okay, go ahead.
My camera is on or off? Off ना? ठीक है, मैं mostly I will be on mute because few of the people are coming to my home, so I will be on mute, okay, and switch off my camera, but I will be moving the slides. Okay, yeah. Can you see my screen now? Hmm.
सर एक बार आप होस्ट बता सकते हैं, होस्ट क्या होता है? आइडेंटिफाई लाइव होस्ट। यस, हाँ। सो आइडेंटिफाई लाइव होस्ट का मतलब है कि कौन कौन से जो सिस्टम्स हैं वो चल रहे हैं, चालू हैं। ओके। Anything आपका which स्क्रीन। anything which you want to communicate, like web applications, URL, website, firewall, router, all those are called hosts, right? It is not necessary that your laptop, anything, if you are trying to connect with the server, that is your, target host. If you are using a laptop, then it will be your source host. If you are using a mobile, then it will be your source mobile host. राइट, तो जिस चीज पे आप टारगेट करते हैं उसको होस्ट बोलते हैं. एंड सिमिलरली, इज दैट राइट बालाजी? आप यू वांट इट इज एनी टारगेट. Actually, your screen was not shared, so we Yeah, didn't you see. can show the I will be back in 2 minutes. You can carry on, Balaji. Hmm. उसने- Okay. 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 किन किन लोगों ने चेक किया अपना? वो ऑल हैव चेक्ड. तो जैसे ही बालाजी कुछ बताते हैं, जस्ट ट्राई टू रिप्लिकेट इट ऑन योर मशीन. Go to command prompt. Of course, anybody is joining from mobile, then of course they will not able to do this, but try to use laptop for these classes. ठीक है? Should I share my screen, Balaji, now? Or also, if you are trying to connect with any host mostly कहा जाता है कोई कोई एक फिजिकल एंटिटी हो उसे होस्ट करते हैं. बट इन जनरल इन साइबर सिक्योरिटी आईटी यू कैन से कि कोई भी सर्वर भी है, कोई भी एप्लीकेशन है, यूआरएल है, तो जो ऑल आर होस्ट, राइट? ठीक है. तो माय स्क्रीन इज विजिबल? Not yet. Not. ओके. And sir, every host has like that 65,000 करेक्ट. ports. Okay. एग्जैक्टली. And each port is running some kind of a service. Like, नो, okay. it's a very good question, Balaji, and I'm very happy that somebody had asked these questions. So exactly, every port has its own purpose. So let's say if I want to host just one web applications, जिसमें कि समझो कि आपको केवल एक वेब एप्लीकेशन होस्ट करना है कि कोई दुनिया देख सके, कि कोई पेज देख सके, वेब एप्लीकेशन देख सके, तो you have to understand कि which port you should be enabling so world can see your web applications, राइट? तो वो पोर्ट आप इनेबल करोगे. रेस्ट ऑफ द पोर्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू डिसेबल इट, स्विच इट ऑफ. हाउ यू विल डू इट? जब आप सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो, फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हो, दैट टाइम यू डिसेबल इट एंड disable everything, and once and you open only those ports which is required for your purpose, right? So basically sir, एक चीज कि होस्ट तभी हम यूज करते, पोर्ट हम तभी यूज करते हैं जब किसी से कनेक्ट करना हो. इज इट? Port is used for connecting with some.
POP3, हाँ HTTP, यस HTTP 80 HTTP 443, 443. 80 and 443. Sure. और एक और चीज ये था कि मैनेज कौन करता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये पोर्ट ओपन करते हैं, तो लाइक जैसे यूजर तो नहीं कर रहा है कि ये पोर्ट ओपन कर रहा है, तो लाइक वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है पोर्ट। ओके। ओके। Okay. So Balaji, adding to your point, so can you all hear me? यस सर। तो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से कि एक कंपनी में हमें एक लाइनेक्स का सर्वर इंस्टॉल करना है या फिर विंडोज का सर्वर इंस्टॉल करना है, राइट? तो वो प्रोजेक्ट ने बोला सर्वर की टीम को कि मुझे एक लाइनेक्स या विंडोज का सर्वर कॉन्फ़िगर करके दो, हार्डवेयर पे इंस्टॉल करके दो। साथ में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए सीरियस है, उनके पास एक गाइडलाइंस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एवरी डिवाइस, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हार्डनिंग गाइडलाइंस। हार्डनिंग गाइडलाइंस में ये होता है कि कौन कौन से सर्विसेज, कौन कौन से पोर्ट्स और कुछ और सॉफ्टवेयर या कैसे आप अपने सर्वर को बिल्ड करते ही समय सिक्योर करेंगे, दैट इज ऑल थिंग्स रिटन इन दैट हार्डनिंग गाइडलाइंस। ये इंटरनेट पे भी मिल जाता है। लाइनेक्स जिसने बनाया है कंपनी ने, उसने अपना गाइडलाइन शेयर किया हुआ है पब्लिकली। माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर किया हुआ है कि इफ यू कॉन्फ़िगर योर विंडोज सर्वर, देन यू शुड डेफिनेटली फॉलो these hundreds of
steps or maybe 5-10 steps which are applicable for your organization. तो एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सन हमें कॉन्फ़िगर करने की बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है, कभी भी हम शायद ही वो करते हैं, लेकिन हम ये चेक करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में if somebody has said that they have a good hardening guidelines following for configuring servers and routers, then it is our responsibility to check whether that team has followed the hardening guidelines or not by checking that how many ports are open by running okay see you by running different kinds of command, right? So it was definitely a very good question and I hope you understood कि साइब कि उसमें कौन पोर्ट ओपन करता है, सर्विसेज ओपन करता है, कौन सर्वर कॉन्फ़िगर करता है और हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है. इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. It is there. ओके. याद रखिए हार्डनिंग गाइडलाइंस, वो नाम याद रखिए. और जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बात करी थी कि वी आर यूजिंग डिफरेंट टर्म्स, उस टर्म को लिखिए, नोट कीजिए एंड इमीडिएटली और मे बी आफ्टर सम टाइम चेक इट कि अरे उसने बोला था कि उस वो वर्ड यूज किया था, उसका क्या पर्पस है. डेफिनेशन, नोइंग द डेफिनेशन, लर्निंग द डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट to excel your exercise to crack your interview. That is very important. अगर आपसे पूछ देगा इंटरव्यू में कि हार्डनिंग गाइडलाइंस के बारे में बताओ क्या होता है, now if you have already gone through the definition that what is the hardening guidelines definition is, you can immediately tell that person. Okay Balaji, now carry on. Correct. Sure. नहीं बोल रहा था. लाइक सर, आपने वनएबिलिटी के बारे में बोला, तो लाइक जो पब्लिक में जो वनएबिलिटी रहती है कोई भी पोर्ट्स के बारे में, तो वो तो वही रहती है जो फिक्स हो चुकी है ना. नहीं, सॉरी, व्हाट इज
Sorry, Balaji, what is your question? I didn't get that. Can you please come again? लाइक सर मतलब जो भी किसी भी पोर्ट्स है उसकी वनएबिलिटी पब्लिक में तभी अवेलेबल रहती है जब वो फिक्स हो चुकी है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं तो। नहीं, फिक्स हुई है या नहीं हुई है, वनरेबिलिटी तो पब्लिक में रहेगी रहेगी। आपने अपने कंपनी में फिक्स कर दिया, बट दूसरी कंपनी ने नहीं फिक्स किया, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट लेट्स से दैट एनी वनरेबिलिटी इज रिलेटेड टू, फॉर एग्जांपल, कमिंग ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पे आ रहा है, ठीक है, और किसी हैकर ने या किसी रिसर्चर ने बता दिया कि आई एम एबल टू exploit certain vulnerabilities in that operating system. Now it is Microsoft's responsibility to generate a patch or develop a patch, build a patch to fix that vulnerability. और उसके बाद अगर माइक्रोसॉफ्ट ने उसको पैचिंग रिलीज कर दिया उस वनरेबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो वनरेबिलिटी फिक्स हो गई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। लेकिन वो पैच किसी कंपनी ने अपने यहाँ अपने सर्वर पे डिप्लॉय किया कि नहीं किया, दैट इज अप टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वी कांट कंसीडर इट कि फिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनी के पास फिक्स हो गया। इट इज एवरी इंडिविजुअल organization's responsibility to deploy that patch, and then it will be considered as a fix. Is that, are you able to understand यस सर। the answer? Okay. Okay. ठीक है, next. Okay. Are you able to see this slide, new slide? Why? No, I have already. Yes, sir. Is it? फोर्थ पेज नहीं TC? दिख रहा है, थर्ड ही दिख रहा है। Let me reshare it. नाउ इट Now इज you are. विजिबल। Okay. This is slide, na? This slide. You stick it in it. No, no, you okay. I think you have covered everything. And this, but just one thing, TCP and UDP protocols, to understand it very important. You all should understand that how transmission control protocol and
UDP protocol works, what is the purpose of this, what is the connectionless and connection protocol, why these TCP and UDP protocols are used, and how it is used in overall in networking environment, and how it is used, where it is used, right? So you should do some research also. Okay. Yeah. या और इसमें इसमें मतलब मैं भी कुछ पॉइंट ऐड करूंगा। जैसे एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो टीसीपी है विच इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ये जो है इसको ना रिलायबल कनेक्शन बोलते हैं। सो व्हेन आई से रिलायबल मीन्स कि यू कैन ट्रस्ट टू इट कि आपका पैकेट जो है वो डिलीवरी हो रहा है और उसके हर पैकेट की डिलीवरी पे आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाए कि हाँ मेरे को मिल गया। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको कुछ सामान जो है डिलीवर करना है कहीं और भी, या फिर आप जैसे अपने ना चिट्ठी वगैरह लिखते हो और अगर चिट्ठी डिलीवर होना है जहाँ पे, तो जब आपकी चिट्ठी डिलीवर होगी ना तो डेफिनेटली वो वहाँ से मतलब रिस्पॉन्स भी आएगा कि हाँ मतलब पोस्ट ऑफिस के ऑफिस में पता चल जाएगा कि भाई वो चिट्ठी डिलीवर हो गई है। अगर नहीं डिलीवर होगा ना तो वो आपके एड्रेस पे वापस से लौट के आएगी। तो ये एक टाइप का ना आप इसको बोल सकते हो कि जब आप चिट्ठी लिखते हो तो बोलोगे कि हाँ यार वो 100% है कि वो पहुंच ही जाएगा वो एड्रेस पे। तो टीसीपी उस टाइप का है। अब वो मतलब वो चिट्ठी लिखने वाली बात तो वो अलग है, लेकिन जब डेटा की बात करें तो जब डेटा जब सेंडर से रिसीवर के पास रिसीवर से जब सेंडर के पास जाता है या फिर वन मशीन टू दूसरे मशीन में जाता है तो वो 100% है कि वो डेटा जो है डिलीवरी होगा और हर डेटा डिलीवरी पर एक रिस्पॉन्स मिलता है। वो सामने वाला बोलता है कि हाँ मेरे को मिल गया, हाँ मेरे को मिल गया, हाँ मेरे को मिल गया। और जब वो बोलेगा कि हाँ मेरे को पहला पैकेट मिल गया तभी वो दूसरा पैकेट भेजेगा। फिर वो बोलेगा कि हाँ मेरे को दूसरा मिल गया तब वो तीसरा भेजेगा। तो लाइकवाइज जो है इसलिए इसको रिलायबल बोलते हैं, इसलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं कि एक वर्चुअल कनेक्शन टाइप बना हुआ रहता है सेंडर और रिसीवर के पास, जो कि यूडीपी में मिसिंग है। यूडीपी एक ब्रॉडकास्ट टाइप होता है है ना, वो 1 to 1 नहीं होता है, डेडिकेटेड नहीं होता। यूडीपी एक ब्रॉडकास्ट होता है कि हाँ मैंने भेज दिया, अब मुझे मतलब नहीं है तुम्हें मिला तो मिले, नहीं मिला तो नहीं मिले, आई डोंट केयर, मेरा काम था भेजना, मैंने भेज दिया। Correct. And it depends on the organization and depend on the purpose of that connection कि क्या चाहता है। अगर मान लो कि मुझे केवल और केवल एक भेज देना है डेटा, मेरा पैकेट यहाँ से भेज देना है, and I am not bother about whether it is received by somebody or not, acknowledged by somebody or not, मेरा काम था कि बस उसको भेज दो, मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। तो उसमें यूडीपी उसके लिए यूज होता है। टीसीपी का होता है कि आपने भेजा, आपने वहां से एक्नॉलेजमेंट भी लिया और वो रिस्पॉन्स भी आपके पास आया, वो आपके पास मतलब सर्वर के पास आया, होस्ट के पास आया, और उसने कंफर्मेशन भी किया कि हाँ ये डिलीवरी हो गई है और सक्सेसफुल डिलीवरी हो गई है। अगर फेल हो गई है तो फेल का भी रिस्पॉन्स करेगा। तो ये दोनों प्रोटोकॉल का यूज होता है कि आपको क्या चाहिए, किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं। एंड आई थिंक वी शुड टेक वन सेपरेट क्लास फॉर टीसीपी यूडीपी बिकॉज दिस क्लास इज दिस दीज प्रोटोकॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको नेटवर्किंग का भी थोड़ा आइडिया होगा। हाँ आईटी मतलब पेन टेस्टिंग में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी कि इतना डेप्थ में जानने के लिए, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर नॉलेज, वी कैन हैव वन क्लास। ठीक है, थैंक यू, वी कैन मूव ऑन। Are you able to see the slide? I think the connection is, yes, yes. I think connection is little bit slow.
चला गया फिर से? अभी आ रहा है? एवरीबॉडी मुझे भी दिख रहा है। विजिबल है सर, विजिबल है। इज इट ओके? ओके। Balaji, are you able to see my screen or not? Yes, sir, it So is. everybody can see the screen, isn't it? Yes, And Yes, sir, we because can see I can't see if anybody is messaging, I can't see. Hmm. Hmm. So बेसिकली इन सिंपल टर्म्स आप ये समझिए कि आप पटना में बैठे हो और आपको किसी को एक मैसेज फॉरवर्ड करना है, लेट्स से कि दरभंगा में मैसेज फॉरवर्ड करना है। अब आपने किसी को भेज दिया कि ये मैसेज जाके उसे पहुंचा दो। अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज आलोक ने भेजा है यहाँ से, राइट? तो मैं क्या करूँगा कि उसमें कुछ एक अपना आइडेंटिटी डाल दूंगा। इस केस में यहाँ पे डाल दिया, लेट्स से कि मैंने एक्स डाल दिया। उसी तरह से या तो मैं कुरियर से भेजूंगा या फिर मैं किसी को और से भेजूंगा। उसी तरह से चाहे वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ब्राउजर के थ्रू होगा, मोबाइल के थ्रू होगा, लैपटॉप के थ्रू होगा, किसी तरह का कनेक्शन स्टार्ट होगा कि किसी को कांटेक्ट करने के लिए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मैं अपने एक फ्रेंड को लेटर भेज रहा हूँ कि ये वाला लेटर है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि मैं ही हूँ? तो मैंने एक यूनिक आईडी उसमें डाल दिया कि ये वाला मेरा यूनिक आईडी है, और तो मेरा फ्रेंड को पता चले कि अच्छा ये आलोक ने भेजा है। नाउ वंस ही रिसीव्ड माय मैसेज, तो वो फिर मेरे वाले आईडी को लेगा और फिर एक अपना आईडी भी ऐड कर देगा कि मुझे भी पता चल जाए कि अच्छा उसी ने ही मुझे भेजा है, राइट? अब वहां से मिलने के बाद जब मेरे पास मेरा भेजा हुआ और उसका भेजा हुआ आईडी मुझे मिल जाता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि फिर से एक रिस्पॉन्स भेजता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, सब कुछ मिल गया, नाउ लेट्स स्टार्ट द कम्युनिकेशन। कि हमारा चैनल से बन गया, एक एक लिंक बन गया, एक पाइप बन गया। अब तुम ओके हो कि शेयर करो मुझे डाटा। तो इसमें क्या होता है कि आपने अपना इंफॉर्मेशन उस सर्वर को दिया, सर्वर ने अपना इंफॉर्मेशन, आपका इंफॉर्मेशन देखा, अपना इंफॉर्मेशन डाला, आपके पास पहुंचा, आपकी मशीन के पास पहुंचा, और मशीन ने उसको एक्नॉलेज कर दिया कि एवरीथिंग इज फाइन, आई एम ऑन द राइट प्लेस, आई एम द राइट प्लेस, एंड वॉट एवर आई एम एक्सेसिंग इज द राइट कंटेंट, और मुझे आप भेज दो। कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है इस मतलब टीसीपी आईपी हैंडशेक कैसे होता है इसमें? और ये हैंडशेक आप ब्राउजर के थ्रू भी ले सकते हो, जैसे कि आपने एचटीटीपी गूगल किया, तो जो ये अभी हमने देखा कि कैसे शुरुआत होती है, कैसे एक्नॉलेजमेंट होती है, कैसे सिंक होता है, दैट ऑल हैपेंस ऑन द ब्राउजर। कोई तो डाउट है? मतलब लाइक मैं जो समझा वो मैं बताना चाहता हूँ, और आप मतलब उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा। तो जैसे जो हैंडशेक होता है उसमें क्लाइंट और सर्वर रहता है। तो क्लाइंट को अगर सर्वर से कनेक्ट करना है तो क्या करता है, वो सिंक रिक्वेस्ट भेजता है, और एक
पैकेट भेजता है, डेटा पैकेट, और उसे कैसे पता चलेगा कि ये बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, देन वो एक यूनिक नंबर उसके साथ सेंड करता है। देन सर्वर गुड। क्या करता है सर, देन सर्वर एक्नॉलेजमेंट भेजता है, सिंक एक्नॉलेजमेंट, और फिर एक यूनिक ओबी डेटा भेज, एक यूनिक डेटा वो जनरेट करता है, और एक यूनिक नंबर की मतलब कि ये क्लाइंट है और इसके साथ एक्नॉलेज होता है। तो देन वो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट हमें सर्वर से मिल गया तो देन कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है और एड ऑन हो जाता है। तो उसमें एक्नॉलेजमेंट y+1 ये सब थोड़ा मतलब एड ऑन कर देते तो बेटर रहता। मैं थोड़ा नहीं, एब्सोल्युटली आपने जो बोला वही होता है। लेट्स से मैंने गूगल पे सेंड किया, अब गूगल को मैंने क्या बोला कि अपना होम पेज दो, तो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन के साथ सिंक रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद फिर मेरे पास सिंक एक्नॉलेजमेंट आया, मेरे पास गूगल का पेज अब कनेक्टिविटी हो गई, सर गूगल के पास पहुंच गया कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो अपना पेज प्रेजेंट कर देता है मेरे ब्राउजर पे, यस सर, राइट? यस सर। एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू शेयर और एनी क्वेश्चन? मैं थोड़ा अगर मुझे थोड़े 2-4 मिनट के हाँ लिए बोलिए। दोगे तो ऑफ आई कोर्स, आई शेयर, डू यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन? यस 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 प्लीज गो अहेड। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मैं इसको ना अब कोरिलेट करके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में एक बार ये समझाना चाहता हूँ ताकि हाँ थोड़ी ना क्लैरिटी मिले आप सबको। तो लेट मी डू दैट। हाँ, एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दे दें तो दैट इज फार बेटर। हाँ यस यस शेयर स्क्रीन आई गेस entire screen. I hope my screen is visible. अभी आ गया होगा, राइट? अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सो अभी तक जो भी ये टीसीपी प्रोटोकॉल की बात हुई है ना, तो ये प्रोटोकॉल का एक्चुअली बात या इस लेयर पे हो रहा है। अगर हम लोग गौर से देखें तो वो ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो रहा है। आई होप सबने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सबने पढ़ा होगा, राइट? काफी पहले हाईलाइट हुआ था ओएसआई लेयर और टीसीपी आईपी लेयर। OSI layer 7 layer हाँ, 2. मतलब it is a set of protocol which is defined so that every computer can communicate to the different computer on the network. So मतलब नक्शल में यही है कि एक लेयर ऑफ प्रोटोकॉल है जो ज़रूरी है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझने के लिए और कुछ भी भेजने के लिए। अभी जो टीसीपी हैंडशेक हो रहा है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको जो है सर ने बताया है, बालाजी ने, कि वो यहाँ पे हो रहा है। टीसीपी पे एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो मेनली प्रोटोकॉल होते हैं। एंड बालाजी करेक्ट मी अगर कुछ भी मैं गलत करूँगा तो पॉइंट आउट करना। टीसीपी और यूडीपी, हाँ यहाँ पे वो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल आता है। एप्लीकेशन लेयर पे हमारा एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी और भी बहुत सारा, जैसे मेल के लिए एसएमटीपी, वो सारे एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल आते हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे मान लो कि मैं अपने ब्राउजर पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मेरा सारा इंटरेक्शन जो है, मैं यहाँ पे एचटीटीपीएस से बात कर रहा हूँ, राइट? गूगल पे जो भी मैं ब्राउज कर रहा हूँ वो एचटीटीपीएस पे कनेक्शन पे बात कर रहा हूँ, तो मैं एप्लीकेशन लेयर पे बात कर रहा हूँ, राइट? अब कोई भी डेटा मैं कुछ भी क्वेरी कर रहा हूँ, मान लो कि मैं कुछ भी क्वेरी किया गूगल पे मतलब अबाउट बिहार, तो ये क्वेरी में क्या होता है कि ये बिहार भूमि ये खुल गया, तो क्वेरी में क्या होता है कि मेरा पैकेट जो है वो गूगल के सर्वर पे के पास गया और वो रिस्पेक्टिव जो है मैं जिससे बात करना चाहता हूँ उसका जो है डिटेल निकाल के हमें भेजा, राइट? तो अब ये एक्चुअल में कनेक्शन जाता कैसे है, मैं अभी बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन लेयर पे, फिर वो उस पे बाद वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से इंटरनेट पे जाएगा, फिर वो फिजिकल लेयर पे जाएगा, तब जो है वो फिजिकल लेयर पे जाके वो 010101 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा मैसेज आपका 01 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो आपके राउटर के सहारे गूगल के सर्वर पे जाएगा। और सेम वाइस वर्सा उसका एग्जैक्टली उल्टा जो है गूगल के सर्वर के पास होगा, वो 0101 पहले वो इस लेयर पे खुलेगा, फिर वो इंटरनेट लेयर पे खुलेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे खुलेगा, फिर वो एप्लीकेशन लेयर पे खुल के तब वो बात करेगा। फिर उसको अगर कुछ पैकेट भेजना होगा तो वहां से फिर से वो रैपर चढ़ाते हुए भेजेगा और वापस से हमारे पास इस लेयर पे आएगा, फिर हम ऐसे 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 करके यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन लेयर पे। आई होप
ज़्यादा हेक्टिक मैंने नहीं कर दिया। तो ये पैकेट जाता कैसे है एक्चुअली में? ये पैकेट एप्लीकेशन लेयर पे आपने एक डेटा भेजा, उसके आगे एक हेडर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का लग जाएगा, फिर उसके आगे एक हेडर इंटरनेट लेयर का लग जाएगा, फिर उसके आगे एक हेडर जो है डेटा लिंक लेयर का लग जाएगा, फिर फिजिकल लेयर का मतलब हेडर लगता चला जाएगा। अब ये हेडर के अंदर होता क्या है, अब ये जो सिंक और वो मैसेज की जो बात हो रही है ना, ये जो टीसीपी हेडर जो लगा, तो ये हेडर ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये ना टीसीपी हेडर, एक सेकंड में अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर पाऊँ तो। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आपका लैपटॉप है, आपने घर से कनेक्ट किया, लेकिन गूगल को तो नहीं पता चलेगा कि आपका होस्ट नेम क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है। उसे पता चलेगा आपके जो इंटरनेट प्रोवाइडर है या फिर जहां से वो नेक्स्ट कनेक्टिविटी देगा। तो जो पैकेट की बात कर रहे हैं उसमें आपके घर से, आपके राउटर से निकल के जो दूसरे राउटर के पास जाएगा, उसमें वो अपना आईपी एड्रेस ऐड करता जाएगा, राइट। एंड Right. गूगल जब वहां से रिटर्न करेगा तो वो रीड करता रहेगा कि अच्छा चलो, जो फॉरवर्ड हुआ था, जो एक एक आईपी एड्रेस ऐड हुआ था, वो अब बैकवर्ड आएगा कि अच्छा मुझे यहाँ से इस वाले आईपी एड्रेस को, जो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाली जो चीज थी, नहीं Right, फर्स्ट कम right. लास्ट आउट, तो जो सबसे लास्ट में आया था वो गूगल की तरफ से पहला हो जाएगा, गूगल उसे रिस्पॉन्स करेगा, वो पैकेट में ऐड करता जाता है। राइट राइट राइट। हाँ, मतलब वही है कि जैसे जैसे मान लो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास अगर किसी ने मूंगफली खाया होगा, बिहार में उसको चिनिया बादाम बोलते हैं, तो वो एक फनल में देता है ना, गोल करके, उसमें सबसे आखिरी में जब मूंगफली भरते हैं, निकालने टाइम में सबसे पहले वही निकलेगा, राइट। ये तो आप लोग भी समझ सकते हो इसको। करेक्ट, तो जो सबसे, जो अगर फनल में जो आपके ठोंगा जिसको बोलते हैं बिहार हाँ, में, वही वही ठोंगा ठोंगा सर, राइट। तो आपको सबसे पहले जो डाला उस ठोंगा में वो सबसे नीचे चला गया, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे ऊपर आया। तो अगर आपका वही है कि आपको खाना है तो सबसे पहले उसी तरह से गूगल आपको सबसे पहले उस आईपी एड्रेस को भेजेगा जो कि सबसे नियरेस्ट उसके सर्वर का होगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ जी। यस सर। कहीं पे तो यस सर। हाँ ट्रेस, हाँ हाँ, ट्रेसर राइट का राइट। ट्रेसर है नहीं यार मेरे में, आई गेस। TRS, ट्रेस राउट होगा ना इसमें, ट्रेस हाँ इसका राउट ट्रेस होगा। आउट होगा। अब एक मिनट स्लोली करना, ये ट्रेस राउट एक कमांड दे दिया इन्होंने। अब ये समझ लो कि जैसा कि आपका ब्राउजर पे आप गूगल डालोगे, और जैसे जैसे आपके ब्राउजर से निकल के अगले वाले हॉप पे पहुंचेगा, हॉप का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, एग्जैक्टली नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आपके घर से नहीं, इंटरनेट से जो जो जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पे दिखाएगा। तो google.com जब आप ब्राउजर में डालते हो वो तो दिखता नहीं है, लेकिन आपका जो ये वाला कमांड होगा, करेक्ट राइट। करेक्ट। सो ब्राउजर जब आप देखते हो तो उसको आप नहीं देख पाते हो कि कहाँ कहाँ गया आपका ब्राउजर का रिक्वेस्ट, वो पैकेट कहाँ कहाँ ले गया। तो ये टूल जो है आपको दिखाएगा कि आपके ब्राउजर से जब निकलता है डेटा, वो रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट, वो कहाँ कहाँ जाता है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको कि कहाँ गया है। सबसे पहले आपने देखा कि google.com है, अब google.com, ये मेरा आईपी है, मेरे मेरे घर का राउटर का नहीं, आईपी वन सेकेंड वन सेकेंड। है। सो ओके। बेसिकली हमने ये कमांड डाला कि गिव मी ट्रेस रूट फॉर google.com। नाउ सबसे पहले ट्रेस रूट ने क्या किया, जो होस्ट नेम है उसको बोल दिया आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड डीएनएस रिजोल्यूशन, राइट। जब आप डीएनएस के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब गूगल, इस कमांड को ये पता है कि गूगल है और गूगल का आईपी एड्रेस ये है, राइट। अब ये देखो ऊपर में दिखा रहा है कि कितनी दूर है इनकी मशीन से google.com, बता रहा है कि 64 हॉप्स है, करेक्ट। और उसका पर बाइट पैकेट ये 40 बाइट्स पैकेट जाएगा। अब 64, हम मुझे अब ये जो खत्म होगा ये जो प्रोसेसिंग, तो आपका सबसे लास्ट में 64 हॉप्स के पास, हॉप के पास वो google.com आएगा। इज दैट क्लियर गाइस, एवरीबॉडी? नाउ यू अंडरस्टूड कि आपके ब्राउजर से जब निकलता है वो रिक्वेस्ट तो कहाँ कहाँ जाता है।
सबसे पहले ब्राउजर आपका google.com को कन्वर्ट करता है कि अच्छा मुझे इस आईपी पे जाना है, मुझे इस आईपी पे जाने के लिए कौन कौन सा रूट है, वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करता रहता है पैकेट, जो कि आपका ये कमांड दिखा रहा है। और रंजन, नाउ यू कैन एक्सप्लेन कि कैसे ये कमांड जो है सो आगे राउटर को फॉरवर्ड करता है। प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम योर फर्स्ट हॉप। राइट राइट। तो ये सबसे पहले जो है ये तो गूगल का आईपी हो गया, राइट? ये तो पब्लिक आईपी हो गया। आप सबको पता है ना ये कौन से क्लास का आईपी है बाय द वे? कोई बताएगा क्लास में से? हमने क्लास ए बी सी डी पढ़ा था, कौन से क्लास का आईपी है? डी का है, डी का क्लास है, बी का है वो तो। वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये प्राइवेट है या पब्लिक है? तो पब्लिक है। पब्लिक है, पब्लिक है, वेरी नाइस। और ये वाले कौन से क्लास का है? प्राइवेट है और ये सी का है। सी का है। वेरी वेरी नाइस। तो ये जो है हमारा ये जो आईपी है ये मेरे घर के राउटर का आईपी है 192.168.1.1। अगर दिखाऊं इसको खोल के मैं ब्राउजर में, तो ये हमारे राउटर का जो है कंट्रोल पैनल है जहां से राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है। पता नहीं इतना ओपन टाइम कीजिए लग रहा है। उसको। आप ओपन कर रहे हो क्या ब्राउजर में? देखो हाँ आप हाँ सबके घर yes। से आप ये आईपी एड्रेस कैसे आप अपने ब्राउजर पे जा सकते हो, ये देखना कि आपके राउटर में कैसे घुस सकते हो। रंजन इज शोइंग यू दैट। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रहा है। स्लो हो रहा है बहुत। HTTPS नहीं नहीं, ऐसे भी ले लेता है। दूसरे ब्राउजर, हाँ आ गया। तो ये आ गया। ये आपका, आप भी अपने 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 मशीन पे अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा, और मोस्टली पासवर्ड यही रहता है एडमिन एडमिन सबका। तो ये आपको चेंज करना है। साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में आपको आपके राउटर का कॉमन पासवर्ड रहता है, डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है, वो आपको चेंज करना होता है। आपका कोई भी लॉगिन कर लेगा और उसको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इसका पासवर्ड ये हो सकता है। बाय डिफॉल्ट हर एक कंपनी अपना डिफॉल्ट पासवर्ड रखती है। प्लीज एक्सप्लेन इट कि क्या या देखा इन या तो ये जो है हमारे राउटर का अपना कॉन्फ़िगरेशन पैनल है जहां से हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे कि कितने डिवाइसेस से जुड़ सकता है। एक मिनट रंजन, एक मिनट रंजन। तो आप लोगों को पता चला कि क्या क्या दिखा रहा है इंटरफेस पे, क्या ब्राउजर पे दिख के आया गाइस मैंने एंड सिर्फ गर्ल्स ये यूआरएल में डाला है ऑल्सो? जो कि मेरे हाँ, मैं राउटर इन का लोगों आईपी से हाँ, इन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि इन लोगों है। को पता चल रहा है कि कैसे आपने किस किस चीज को एक्सेस कर रहे हो। वाईफाई गजानन, का। आपने कुछ? किसी को डाउट है क्या कि राउटर क्या है होता है, होम राउटर क्या होता है? सर लाइक राउटर से अगर हम कनेक्टेड है तो हमें ए इंटरफेस दिखेगा। अगर हम लाइक आईएसपी से कनेक्टेड है कि फोन के इंटरनेट से यूज करें, देन क्या होगा? हम्म। राइट। और अगर तो आपका राउटर जो है वो मतलब कंपनी आपको खुद कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो आपको वो देती है परमिशन। दूसरा जो आप अगर आप डायरेक्टली अपने मोबाइल के थ्रू आईएसपी से कनेक्टेड हो तो उस केस में आपका मोबाइल से अगर हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो आपका मोबाइल जो है एक गेटवे बन जाता है, राइट? और मोबाइल को कॉन्फ़िगर करने का तरीका जो है वो मोबाइल के सेटिंग्स में होता है, राइट? तो वो तरह तरीके के मतलब तरीका है जहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या बाय बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगर है उसके हिसाब से चल सकता हो। किसी ने हॉटस्पॉट भी ऑन किया होगा ना मोबाइल पे, उसका पासवर्ड आप लगाते हो, आप डिसाइड करते हो कि एक फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है या 2 फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है एटसेट्रा। तो वो सब कुछ जो है आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये राउटर तो जो है कंपनी में। आपके आपके राउटर में अगर आपको लॉगिन करना है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपके राउटर का आईपी एड्रेस क्या है। वो राउटर का आईपी एड्रेस कैसे मिला? रंजन, आप एक बार वो कमांड प्रॉम्प्ट दिखा दीजिए हाँ, कि आपको ट्रेस वो राउट। भी चाहिए। ट्रेस राउट हमने किया तो ट्रेस राउट का मतलब होता है कि गूगल तक जाने का ना रास्ते को ना ट्रेस करना है, एक एक स्टेप को बताना है कि हम लोग कैसे कैसे गूगल के पास पहुंचे हैं। हमारा पैकेट मतलब हम लोग मतलब
हमारा पैकेट जो है हमारे लैपटॉप से अभी मैं जो कमांड भेज रहा हूँ, डेफिनेटली इसके पीछे जो है वही वो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और फिजिकल लेयर पे कन्वर्ट होके ये पैकेट हमारा गूगल तक कैसे पहुंचा, वो उसका ये जो है ना वो राउटिंग मैकेनिज्म है, वो पाथ बता रहा है कि सबसे पहले वो गेटवे के पास गया, तो गेटवे के वन पास सेकेंड जाके वन सेकेंड वन सेकेंड सो सबसे पहले जैसे ही आपने टाइप किया तो इसने बोला कि मेरे इस लैपटॉप के बाद का दुनिया क्या है, हाँ इसके बाद का सबसे पहला जो मुझे कनेक्ट करना है बाहर निकलने के लिए, जैसे आप अपने घर से निकलते हो तो हो सकता है 2 डोर हो, लेकिन लास्ट का डोर पहुंचने से पहले आपको पहला डोर जो इंटरनल डोर है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो जी ये जाता है आपके सबसे पहले घर के राउटर के पास, एंड घर का राउटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे देख लो, डी इसमें लिखा हुआ है डीएसएल डिवाइस का आईपी एड्रेस, और इन्होंने ये आईपी लिया और वो ब्राउज़र पे जाके गए, तो इसका मतलब है कि आपके घर के राउटर का आईपी एड्रेस ये है, राइट? और राइट आप उसके बाद आप ब्राउज़र में गए, ब्राउज़र में जाके एचटीटीपी किया, अब उस पे चले जाइए, उस वो ब्राउज़र पे जाके गए, सब लोग अब करना अपने से प्रैक्टिस इसे, चेंज मत करना उसमें कुछ भी, अदरवाइज़ आपका इंटरनेट हो सकता है बंद हो जाए, चेंज मत करना। आपने यहाँ पे लॉगिन किया, ब्राउज़र पे किया तो उसने प्रॉम्प्ट माँगा, लॉगिन प्रॉम्प्ट माँगा। लॉगिन प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि आपसे उसने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड माँगा। लेकिन हर एक यूजर आईडी पासवर्ड, जैसे कि इनका जो भी कनेक्शन प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, सब अपना अपना अलग, एक तो दो चीज होती है, एक तो बाय डिफॉल्ट रखता है कि हर एक जो दुनिया में कोई भी अगर वो वाला यूज करेगा राउटर उस कंपनी का, तो उसके पास यही एडमिन का यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा, एडमिन यूजर एंड पासवर्ड इज पासवर्ड और एडमिन वॉट एवर इट इज, सबका अलग अलग हो सकता है, ये डिफॉल्ट है। यूजुअली हम लोगों को चेंज करना चाहिए इस पे लॉग इन करके, हमारे पास वो चेंज हो जाता है। अभी इसमें देख लो कि इसके बाद अब अपने राउटर पे आपके पास हो सकता है कि फिजिकल राउटर ना हो, ऑफिस का राउटर नहीं हो, बड़ा बड़ा राउटर नहीं हो, लेकिन ऑन एन मोस्ट कॉमनली जो इनके लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं, यही जो है सो सब सारे राउटर्स में होता है, वो थोड़ा एडवांस होता है, राइट? अब यहाँ राइट पे लैंड में जाओ, कुछ यहाँ पे दिखा नहीं रहा है ना, हो सकता है कंट्रोल किया हो, मतलब कुछ नहीं नहीं कुछ तो ये तो तो मतलब पर्पस हमारा यही था कि हम कैसे सिम पैकेट, टीसीपी आईपी पैकेट हम लोग कैसे आगे बढ़ता है, तो हम लोग, मुझे लगता है कि ये राउटर के बारे में इन लोगों को पता चल गया कि हमारा नेक्स्ट होप क्या है। होप पता चल गया बच्चों आप लोगों को कि मेरा फर्स्ट होप का कौन सा होगा और लास्ट होप कौन सा होगा। तो फर्स्ट होप आ गया आपका घर का राउटर, ऑफिस में रहेंगे तो आपके ऑफिस का राउटर हो गया फर्स्ट होप होप, एंड देन जो 64 हॉप है, इस टाइम ले रहा है इसमें आपका थोड़ा सा, नहीं? हाँ पता गुड। नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, एयरटेल का बहुत रोना है अभी यहाँ पे नोएडा में। खैर एनीवेज, तो वही है कि पहला ये राउटर का हो गया, दूसरा हम किसी ने अपने घर से जो रन किया है कोई भी, किसी मैंने बच्चे रन ने? किया है, बट मैं मतलब पीजी में हूँ, वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहे हैं। हाँ राइट राइट रन कहाँ पे किया मेरा पीजी? रन हो गया। टेस्ट करने के लिए तो थोड़ी होगा। मैं स्क्रीन शेयर करूँ राउटर? मतलब नहीं, जैसे जो मैं यूजर नेम पासवर्ड यूज कर रहा हूँ वो तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं वो नहीं होगा। हाँ हाँ। हम्म। कौन से राउटर का लोगो, मतलब जियो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये दिखाओ, आप अपना स्क्रीन शेयर करो। हाँ, आईपी कॉन्फ़िग दबा के हमने चेक किया तो ये गेटवे आईपी आया, यही है ना? अभी स्क्रीन नहीं आई ओ, है आपकी। एक मिनट एक मिनट, मैं वापस से शेयर करता हूँ। हाँ ओके, सो ये गेटवे आईपी, और मैंने करा तो है। हाँ हाँ
एडमिन एडमिन नहीं, वो मैंने कर लिया ट्राई, नहीं है। पासवर्ड डालो एक बार, पासवर्ड, केवल पासवर्ड, एडमिन एंड पासवर्ड। हाँ, मत नहीं। कर देना तो कुछ। हाँ, हम लोग ज्यादा नहीं बताएंगे आपको अभी, लेकिन चलो। बट ये सब नहीं। आसान होता है, ये सब इजी तो ब्रेक किया जा सकता है ऑफिस। राइट राइट राइट। तो ठीक है, तो आप आपने वो बता दिया, वो एक बार हॉप वाला बता दो। तो दिख ही नहीं रहा यार कहीं से, नहीं चल नहीं रहा है ना कि सबका वो हुआ, स्लो हुआ। मेरे पास भी अभी तक 13 होप तक ही पहुंचा है। क्या क्या कौन सा आप? क्या? जो 60 होप तक पहुंचना था ना, कि कैसे गूगल तक पहुंचेंगे और हम एक लोग। और चीज, मैंने ये ट्रेस राउट किया है तो मुझे नहीं दिखा रहा है ये ट्रेस राउट में। एक बार। अच्छा चलो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर नहीं रहा हूँ। नहीं, उसमें काली में। काली में, वन काली में वन ट्रेस राउट चलेगा कमांड, और विंडोज में हाँ, थ्रेड चलेगा। मैं दिखाता हूँ अपना मैंने वो ट्रेस राउट किया है तो इतना ही दिखा रहा है। मेरा स्क्रीन शेयर्ड है, हाँ यस, सही शेड है। तो ट्रेस राउट करने पे यही आ रहा है। लाइक जैसे मैंने ट्रेस राउट google.com किया तो पूरा नहीं दिखा रहा, जैसे आपके में लाइन बाई लाइन आया है ना। दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, हो सकता है कि टेम्परेरी प्रॉब्लम हो। मेरी स्क्रीन दिखी? नहीं अभी नहीं। अब दिख हाँ गई होगी। देखो, अभी तो एक तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोगों ने किया था ट्रेस रूट, है ना। अब आप देखो मैंने क्या किया, ब्राउजर पे चले गए। अब ब्राउजर पे मैंने कर बोल दिया इसको कि ट्रेस रूट करो। ठीक है, अब ब्राउजर कहाँ होस्टेड है मुझे नहीं पता। मैंने अपने कमांड प्रॉम्प्ट से किया तो मुझे दिखाया देयर आर, क्योंकि मैं लंदन में बैठा हुआ तो गूगल तक पहुंचने के लिए मुझे 30 हॉप्स तक जाना था। अगर आप इस टूल की बात करो, ये क्यों नहीं दिख रहा है, स्क्रॉल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं? किसी और का है क्या स्क्रीन? नहीं, आप ही का। तो एक सेकेंड, ये नहीं जा रहा है, स्टॉप प्रेजेंटिंग, 1 सेकेंड। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है मेरी स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो कि मैंने ऑनलाइन गया, ट्रेस रूट करने की कोशिश की, तो इसने बता दिया google.com। और अब इस वाले पोर्टल से, ये मेरे घर का नहीं है, ये इस वाले पोर्टल से, वहां से इसने ट्रेस रूट किया google.com का। ये जहां भी होगा, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पोर्टल इज होस्टेड इन अमेरिका। एज यू कैन सी दैट एयर का मैं अमेरिका का दिखा रहा है। तो वहां से इसने 21 होस्ट ही लिया। अगर आप देखें टोटल इसका 21 होस्ट है, राइट। अब यहाँ से इसने अपने जहाँ पे भी ये सर्वर रखा हो, ये वाला वेबसाइट होस्टेड होगा, वहां से ये सर्च करना शुरू किया। सिमिलरली ये सबसे पहले उसका लोकल जो होगा उसके वहां से उसने ये ट्रेस किया। उसके बाद आगे बढ़ते दूसरे वाले हॉप पे गया, तीसरे हॉप पे गया, चौथे हॉप पे गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया कि ये गूगल का कोई ऑफिस है वहां पे, उसके हॉप तक गया। उसका बाद फाइनल जो है उसने दिखाया गूगल यूएस का यहाँ पे है, तो 21 होप तक पहुंच गया। और इसने सारी चीजें इसने बता दी कि इतना टाइम लगा, इतने दूर गए हम लोग। और ये दिखाया कि यहाँ पे सर्वर था, मैंने ट्राई यहाँ से किया, वहां गया। और क्या दिखा रहा है देखें। तो एज यू कैन सी दैट कि एक तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट यूज किया, राइट। दूसरा मैंने ब्राउजर भी देख लिया, इतने ज्यादा जो चल नहीं रहा था, फिर हमने तुरंत
ब्राउजर यूज करके देख लिया कि चलो ट्रेस रूट कैसे करते हैं। तो एवरीबडी, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि क्या कैसे काम करता है टीसीपी आईपी। इज दैट राइट गाइस, और एनी क्वेश्चन ऑन टू दैट? प्लीज गो अहेड। अच्छा, एक चीज आप लोग बताओ जरा, आप लोगों में से पोस्टल सर्विस कैसे काम करता है, किसी को पता है? हम लोग एड्रेस लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं, और उसके थ्रू लाइक नियरेस्ट जो भी पिन कोड होता है वहां पे पहुंच जाता है, उसके बाद वहां से एड्रेस। नो 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 नो। मैं बोलूं सर? हम्म। एक जैसे मैं अभी पुणे में रहता हूँ, पुणे के पास मैं जहाँ रहता हूँ उसका नियरेस्ट जो भी है, मुझे जहाँ भेजना है मैं उसके सारे डिटेल्स लिख दूंगा, और जो मेरे नियरेस्ट पोस्ट सर्विस है मैं वहां पे जाके उनको दूंगा। देन मतलब वो क्या करेंगे, वो जो वहाँ का मेन ऑफिस रहेगा वहां पे जाएगा, फिर वो स्टेट के मेन ऑफिस में जाएगा, फिर जहाँ मुझे भेजना है वो स्टेट में जाएगा, फिर जो सब ऑफिस है वहां पे जाएगा, फिर जहाँ भेजना है मुझे उसके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाएगा, देन वो मेरे जहाँ मैं भेजना चाहता हूँ वहां पे जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है। तो सबसे पहला तो आपके लोकल नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाता है ना, है आपका लेटर आपने पोस्ट बॉक्स में डाला कहीं पर, नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स से पोस्टमैन आया, उसने कलेक्ट किया सारा लेटर और सबसे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में डाला, है ना रवि? यस दिस इज सर, व्हाट, यस सर। वही वैसा ही ये टीसीपी आईपी काम करता है। आप समझ लो कि आपने जो भी google.com डाला, दैट इज एन एड्रेस। अगर आपने होस्ट नेम डाला कमांड प्रॉम्प्ट में, पिंग होस्ट नेम alokjha.com या फिर आलोक्स मशीन, वो आपका वो हो गया, एड्रेस हो गया, वो सबसे नियरेस्ट गया। तो टीसीपी आईपी ऐसे ही काम करता है। लेकिन टीसीपी आईपी के कॉन्सेप्ट को और भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा टीसीपी आईपी किस किस प्रोटोकॉल है वो, लेकिन उस प्रोटोकॉल का यूज कौन करता है, कैसे उस प्रोटोकॉल का यूज होता है? टीसीपी आईपी तो कुछ है तो नहीं खुद से अपना ही, वो तो एक जैसे कि ग्रामर है। अब ग्रामर तो खुद अपने कुछ नहीं है ना, वर्ड जब हम यूज करते हैं, शब्द बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, दैट इज समथिंग विच इज यूजिंग ग्रामर। सिमिलरली प्रोटोकॉल यूज होता है कि मशीन करता है, डिवाइस करता है, और दुनिया में सारी डिवाइसेज एक ही प्रोटोकॉल को यूज करे तो सबको समझ में आता है। तो उसमें है आपका आईपी एड्रेस यूज करता है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। और टीसीपी आईपी जब आप देखते हो 192.177.2.2, इसमें भी हमारे पास वो डिफरेंशिएशन होता है कि हमने बोला कि एक तो ये मशीन का एड्रेस है, लेकिन उसमें भी फिर डिवीजन होता है कि मशीन का आईपी एड्रेस है तो उसमें से कौन सा पार्ट जो है सो नेटवर्क का पार्ट है और कौन सा आपके होस्ट का पार्ट है। क्योंकि अगर मान लो कि ये 192 तो 192.177.1.2 तो हजारों लाखों मशीन का होगा, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आप ही के मशीन तक आना है? आप ही के नेटवर्क से कनेक्टेड और भी आईएसपी से कनेक्टेड और भी लोग होंगे, और भी हाउसेज होंगे जिनका उनका भी लोकल आईपी वही 192.177.11 समथिंग होगा। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करता है? तो इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। और उसका डिफरेंशिएशन होता है जो आईपी एड्रेस होता है, उसमें कुछ पोर्शन जो नेटवर्क के इंडिकेट करता है, और सम पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस का जो नंबर है वो आपके पर्टिकुलर होस्ट को इंडिकेट करता है।
रंजन, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स इनटू दैट? और मुझे लगता है कि अब आप बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? So ये sorry सर ये रंजन। हाँ नहीं यस सर। ये बिल्कुल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हम लोग प्राइवेट आईपी बोल रहे हैं, प्राइवेट आईपी इज समथिंग कि जो कि वो प्राइवेट है, जो कि मेरा हो सकता है, कुणाल का हो सकता है, नीतीश का हो सकता है, गौरव का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, मतलब सबका सेम आईपी हो सकता है। ये जो मैंने जो आईपी दिखाया वो सेम हो सकता है, लेकिन सबको एक साथ अगर गूगल को अगर पिंग करेगा तो गूगल को सबको, या फिर सबने अलग अलग पिंग किया, किसी ने गूगल खोला, किसी ने फेसबुक, किसी ने इंस्टा, तो सबका अलग अलग रिप्लाई आएगा राइट उधर से। तो वो मैपिंग कैसे होता है, तो वो तो समझना बिल्कुल मतलब जरूरी है ना, कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना काइंड ऑफ एक लेयर बन जाता है, और फिर वो जो फाइनल जो पब्लिक आईपी जाता है, वो उसमें जो है, जैसा आलोक सर ने बताया कि एक नेटवर्क और होस्ट का पार्ट होता है, जिससे उसको पता चलता है कि ये कौन से वाले नेटवर्क से आया है और किस लोकेशन से आया है, जैसा कि आपका पोस्ट बॉक्स ऑफिस में होता है राइट। तो एक लेयर के ऊपर लेयर चढ़ते जाता है, और फिर जैसे हम लोग पैकेट की बात कर रहे थे, और जो सबसे ऊपर वाला लेयर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, उसके हिसाब से वो रैपर खोलते जाता है और उसको रीराउट करते जाता है। और टीसीपी में मतलब अब बैक टू द पॉइंट अगर हम लोग आए, अभी जो हम लोग टीसीपी थ्री वे हैंडशेक जो हम लोग समझ रहे थे, टीसीपी हैंडशेक थ्री वे हैंडशेक में वो जो फ्लैग है, वो सिंक, एक्नॉलेजमेंट, एंड देन उसके बाद सिंक और एक्नॉलेजमेंट वापस से सेंटर जो है भेजता है एक्नॉलेजमेंट और सिंक। तो वो तब समझ में आएगा जब आप लोग को इसका ना टीसीपी हेडर का ना पैकेट समझ में आएगा, कि टीसीपी हेडर के पैकेट्स में जाता क्या क्या है। जैसे हम लोग चिट्ठी में अगर हम लोग बात करें, मतलब पोस्ट ऑफिस में, तो हम लोग जहाँ चिट्ठी भेजना है उसका एड्रेस भी डालते हैं, और हमारा अपना खुद का एड्रेस भी डालते हैं। अच्छा, किसी के साथ ऐसा हुआ कि आप सिर्फ चिट्ठी जहाँ भेजना है उसका एड्रेस डाल दो, आप अपना एड्रेस नहीं डालो, और पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट करता है? नहीं करता करता, है, वो नहीं तो करता है, मेरे को मना कर दिया था। डिग्नेशन भी मुझे पूछता है। याद है बहुत, जब मैं बच्चा था तो पटना में मैंने एक सबमिट करने गया, तो उसने मना कर दिया कि अपना एड्रेस डालो। मैं अब सर हाँ मैं 10 दिन 15 दिन पहले गया था, वो बोलता है भाई किस पोस्ट पर वो भी लिखो। हाँ हाँ राइट। तो वो मतलब आप भेज कहाँ से रहे हैं वो एड्रेस पे डालना होता है। तो जब आप टीसीपी का पैकेट जब आप पढ़ोगे, जब आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का जब पैकेट पढ़ोगे कि पैकेट जाता कैसे है, तो उस पैकेट में डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होता है कि कहाँ वो पैकेट को जाना है, जो कि आईपी होता है। हमारे केस में अगर गूगल को भेजेंगे तो गूगल का आईपी होगा, और फिर हमारा जो सेंडर है कौन भेज रहा है उसमें हमारा आईपी भी होगा राइट। और वो उसी फ्लैग के साथ ये सारे फ्लैग भी जाते हैं, ये जो सिंक फ्लैग वगैरह जो था ना, वो जाएगा, और वो वहाँ पे जैसा बालाजी बता रहे थे कि वो वन हो जाता है। मैं क्विकली एक सेकंड में दिखाता हूँ अगर मेरा स्क्रीन विजिबल हो तो। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। हाँ विजिबल। तो इसमें इसमें जैसे कि अगर हम लोग देखें ना, पता नहीं है, इसमें अगर एक सेकंड में ना, इसमें अगर देखोगे ना, ये टिपिकल एक पैकेट का साइज है। इस पैकेट के साइज को अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जब देखोगे ना, ये मैं इसी की बात कर रहा था, यही वो बात वो बालाजी भी कर रहे थे कि ये पैकेट का ही कंटेंट है। जो एक पैकेट भेजते हैं ना, मान लो हेलो भेजना है गूगल को, या कुछ भी पैकेट भेजना है, तो उसका ही कंटेंट है। उसमें देख रहे हो ये सारे फ्लैग जाते हैं, सिंक, रीसेट, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है फिन मतलब फिनिश, सिंक मतलब सिंक, आरएसटी मतलब रीसेट, पीएसएच मतलब पुश, एसीके मतलब एक्नॉलेजमेंट, यूआरजी मतलब अर्जेंट। तो अभी जब इसको गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही जो है वन सेट है, सिर्फ सिंक और एक्नॉलेजमेंट। मतलब ये टीसीपी हैंडशेक का तीसरा वाला मैसेज है। अगर ये टीसीपी थ्री वे हैंडशेक का पहला मैसेज होता, तो पहला मैसेज में हम लोग को सिर्फ सिंक भेजना होता है राइट, याद है अभी दिखाया बालाजी ने, सबको याद है? हाँ टीसीपी यस हैंडशेक सर, में यस सर। पहला मैसेज सिर्फ सिंक मैसेज होता है। तो पहला अगर अगर हमें कुछ पैकेट भेजना है, तो उस पैकेट में सिर्फ यही फ्लैग वन होगा, और बाकी सारे ये जीरो हो गए। तो वो सामने वाले को पता चल जाएगा ना कि मैंने जो है सिर्फ सिंक पैकेट भेजा हुआ। तो फिर दोबारा वो जब रिप्लाई करेगा ना, वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेज देगा, ये ऐसे करके, और उधर से वो अपना एक नया सिंक भेजेगा राइट।
वही तो था तरीका। तो ये उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो उसके लिए समझने के लिए ना आपको ये पैकेट साइज समझना बहुत ज़रूरी है कि टीसीपी का पैकेट जाता कैसे है और उस पैकेट में होता क्या 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 है। जैसे मतलब आईपी तो होता ही है, आईपी तो नीचे लेयर पे लग जाते हैं टीसीपी में, नेटवर्क लेयर पे, लेकिन उसके पहले सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट जाएगा, सीक्वेंस नंबर जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जाता है, हेडर का लेंथ जाएगा कि कितना लंबा वो मैसेज है। फिर ये फ्लैग जाते हैं, 6 फ्लैग होते हैं, अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, रीसेट, है ना, पुश, सिंक और फिनिश। फिर ये विंडो साइज होता है, एक अर्जेंट पॉइंटर जाते हैं। तो ऐसे ये फ्लैग बन के जाता है, जो थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड है समझ में आना, लेकिन इसको समझाना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में जब हम लोग बोलते हैं ना कि जब सिंक मैसेज जा रहा है और एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, मैं वो सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था। सिंक मैसेज और एक्नॉलेजमेंट मैसेज का मतलब कि वो फ्लैग को वो 1 कर देगा, बाकी को 0 कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारा मैसेज तो 0101 का ही है, राइट। तो बाकी में वो सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ वही वो 1 होगा। कोई सवाल किसी को? ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम गुड मेरे साइड से। लाइक मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे हम्म मेरा क्वेश्चन, जैसे आपने वो अपना आईपी वेब पे डाला और वो आपका एयरटेल है तो एयरटेल का ओपन हो गया, कुणाल हम्म का है तो उसका जो हम्म भी था वो ओपन हो गया। तो लाइक मेरे मतलब मैं आईएसपी यूज कर रहा हूँ, तो मैं जो डिफॉल्ट जो गेटवे था उसको ओपन किया तो दिखा रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। हम्म। क्या किया जा सकता है और कैसे, और वो होता क्या है? मतलब लाइक मैं वो समझा नहीं कि नहीं, उसका यूज क्या है डिफॉल्ट आप कैसा। आईपी नहीं डालना ना। आप मोबाइल का यूज कर रहे हो इस मतलब वाईफाई हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूँ फोन से हाँ, लैपटॉप कनेक्ट फोन करके। से यूज कर रहे हो ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब फोन से आप यूज करते हो ना हॉटस्पॉट, तो अभी उस टाइम पे आपका फोन ही एक राउटर बन गया है। योर फोन हैज बिकम अ राउटर, राइट। और वो एक ऐसा राउटर है जिसका पूरा कंट्रोल आपको मिलता नहीं है कॉन्फ़िगर करने का। उसमें पार्शियल कंट्रोल जो है आईएसपी के हाथ में होता है और पार्शियल कंट्रोल आपको देता है। तो उस केस में आप इसको कॉन्फ़िगर करके देख नहीं सकते हो, इसलिए वो साइट जो है खुल नहीं रहा है, क्योंकि आप कॉन्फ़िगर करने का परमिशन आईएसपी नहीं देता है, क्योंकि आईएसपी अपने हिसाब से वो आईपी सेट करते रहता है, बदलते रहता है। आप अपना फ़ोन का हम्म। आईपी देखोगे ना, अभी चेक कर लो, थोड़ी देर बाद चेक कर लोगे ना, व्हाट इज़ माई IP.com करके इंटरनेट पे, तो हर थोड़ी देर बाद ना वो आपका आईपी चेंज होते रहता है। लेकिन मेरे राउटर का आईपी मैं आज देखूँ या 10 दिन बाद देखूँ, हमेशा ये यही रहेगा, क्योंकि ये लोकल आईपी है हमारा। ये मैंने असाइन किया हुआ है, मेरे राउटर ने असाइन किया हुआ है, ना कि मेरे आईएसपी ने असाइन किया है। मेरे आईएसपी ने मेरे राउटर को ये पब्लिक आईपी असाइन किया है। तो ये हमारे राउटर का पब्लिक आईपी है। आई बात समझ में? तो मैं इसको ब्राउज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक आईपी है और इसका कंट्रोल जो है आईएसपी के पास है, ये हमारे केस में एयरटेल के पास है। गॉट माई पॉइंट? लेकिन हम लोग जो अभी हम्म। राउटर खोले हुए थे, ये मेरे घर में है, ये मेरा खुद का राउटर है, तो मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मैं इसको जो मर्जी वो कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, इसलिए वो खुल रहा था। लाइक लेकिन यहाँ पे जैसे मेरा डाउट है कि ये प्राइवेट आईपी है, जो प्राइवेट आईपी जो राइट, राउटर ने हमको असाइन किया है, अगर राइट, राउटर से 4-5 फोन कनेक्टेड देन उनका अलग अलग होगा और अलग इसी अलग है, सीक्वेंस में होगा कि 1-1 है तो वन राइट, टू हो सकता है, 1-3 हो सकता है। राइट। तो लाइक जैसे अगर मैं वेब पे इसको सर्च कर रहा हूँ तो देन ये कैसे कॉन्फ़िगर हो रहा है कि अगर मैं प्राइवेट आईपी तो बहुत लोगों के पास हो सकता है, तो देन हम्म। ये मेरे ही राउटर से कैसे कनेक्ट होगा ऐसे वेब पे? हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो, वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आलोक सर ने ही बोला है कि अगर लाखों लोगों के पास ये आईपी होगी, राइट, एट द सेम टाइम में लाखों लोग जो है अलग अलग कंटेंट सर्च कर रहे हैं, सबको उनके हिसाब से ही रिस्पॉन्स चाहिए, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने गूगल सर्च किया तो आपको बदले में वो व्हाट्सअप दे दे, तो आप भी बोलोगे क्या ये पागलपंती हो रहा है। आप फेसबुक खोल रहे हो और खुल रहा है वो कुछ भी यूट्यूब खोल जा रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए ना, राइट। तो उस केस में क्या होता है ना कि आपका ये प्राइवेट आईपी का मतलब हो गया ना कि वो प्राइवेट रहेगा, वो पब्लिक नहीं होता है। ये आईपी आपका गूगल के पास नहीं जाएगा, ये जो आईपी है ये आपका सिर्फ आईएसपी तक रहेगा। मतलब अगर इसका आप फ्लो देखोगे ना, एक सेकंड में कहीं
नहीं लाइक सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मैं वो राउटर कॉन्फ़िगर की बात कर रहा हूँ। मैं वो तो मैं समझ गया हूँ। वो राउटर कॉन्फ़िगर मतलब अगर मैं यही आईपी डाल रहा हूँ तो ये कैसे कनेक्ट कर रहा है कि मेरा राउटर यही है, और कॉन्फ़िगर मैं उसको कैसे कर पा रहा हूँ, डाउट मेरा ये है। नहीं, तो वही मैं समझा रहा हूँ ना कि अभी आपका इंटरनेट किसके थ्रू चल रहा है? आपके राउटर के थ्रू ही चल रहा है ना। हम्म। अभी मैं अच्छा, ट्रेस वो आउट किया आईपी हूँ। एड्रेस रवि, वो आईपी एड्रेस आपका आईएसपी प्रोवाइड करता है। आप नहीं चेंज कर सकते उस आईपी एड्रेस को। हाँ, ई एन जीरो होगा, ये रहा ना। ई एन जीरो। ये ये दिस इज माई आईपी है ना, ये मेरे लैपटॉप का आईपी है 1.3। ठीक है। और हाँ हाँ। शेयर करो, देखो ये जो 1.3 है इनके लैपटॉप का आईपी एड्रेस है। और राइट। लेकिन इस लैपटॉप से जो राउटर कनेक्टेड है, वो हर एक राउटर का मोर और लेस वही रहता है, 192.168.1.1। आप सब लोगों के पास वही गेटवे का आईपी एड्रेस वही रहेगा। ये एक तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आईपी एड्रेस असाइनमेंट का जो रूल बनाया है आईएसपीज ने, वो इस तरह से बनाया हुआ है। देखो वो रंजन का था, बालाजी का भी वही है, वन और वो नाइन। आप चेंज चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब चेंज, यही रहेगा। आपको हाँ। मन है कि मैं क्लास ए का आईपी रखूं, यू कैन डू दैट। आई मीन क्लास बी का रखूं, आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऐसा ही बना के दिया हुआ है उन्होंने। यस सर। हम्म। जो मेरा राउटर का एड्रेस है, मतलब आईपी है। आपके राउटर को जो आईएसपी ने दिया है ना, उसका। हम्म। हम्म। जब यस। आपके घर के राउटर से मिला है, और वो आपका राउटर आईएसपी के राउटर से कनेक्टेड है। और वो वहां से पिंग हो रहा है। राइट। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है ना, सब लोग पढ़ के आना है, एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है नेटिंग और पैटिंग का, एनएटी और पीएटी। ठीक है, जिसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं, और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसको आप सब कोई पढ़ के आओगे तो समझ में आ जाएगा कि राउटर एक्चुअली में कैसे काम करता है। ठीक है।
मुश्किल हो जाएगा, राइट। राइट। हाँ, एग्ज़ैक्टली, मतलब मेरे हिसाब से तो देखो, मतलब मैं जब पढ़ाई करता था ना, तो मेरा ये असूल था कि मैं जब तक मुझे चीज़ें विजुअलाइज नहीं होता था ना, अगर कोई बोल दिया कि मैं ऐसे टाइप करूँगा तो ऐसा खुल जाएगा, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं होता था। मैं एकदम मतलब अपने टीचर को पकड़ के रखता था, बोलता था कि सर ये कैसे होगा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसको फील, तुम्हें फील आना चाहिए कि हाँ एक्चुअली मैंने इसको टाइप किया तो ऐसे ऐसे कन्वर्ट हुआ, ऐसे ऐसे ये 01 में कन्वर्ट हुआ, ऐसे ऐसे मेरे मतलब हमारे क्या बोलते हैं एयरटेल के वो गेटवे के पास गया, फिर वो ऐसे ऐसे करके वो गूगल के पास गया। तो वो फील जब तक आएगा नहीं ना, तब तक वो आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, और उसके लिए ही ये तरह तरह के डिस्कशंस भी हो जा रहे हैं। मतलब इतना लंबा हम लोग, आप खुद सोचो कि बालाजी ने ये शुरुआत किया था टीसीपी का हैंडशेक बताने को लेके, लेकिन बीच बीच में मैंने कुछ और जोड़ा, आलोक सर ने कुछ और जोड़ा, सिर्फ इसलिए जोड़ा जा रहा है कि हम लोग की सिर्फ यही कोशिश है कि आप हर चीज़ को ना कोरिलेट करके समझो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, राइट। Exactly. So there are so many connected things that you need to learn. You have to go through it. You have to learn everything in depth. So your concept will be very clear. कोई confusion नहीं होगा. Right? So we are taking so much time explaining just one simple topic because it has some reason. Because if you start skipping the things, you will not able to learn the future things, right? So make sure कि हमने जो TCP/IP हैंडशेकिंग पढ़ाया आप लोग उसको गो थ्रू करें एंड उसको रिवाइज करें। तो मुझे लगता है कि आई थिंक टुडेज क्लास TCP/IP इन लोगों को टास्क दे देते हैं कि आप TCP/IP के बारे में और अच्छे से पढ़ो बिकॉज वी ऑलरेडी हैव done longer session right today. What do you say, guys? Balaji, can we continue the next week? In the meanwhile आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और if you want to share something feel free to share it right now and if you have any question in future drop your question in the WhatsApp call, WhatsApp chat, and we will answer it. Okay, ठीक है everybody, and just I would like to welcome महेश। महेश आप आज आपने पहला दिन क्लास ज्वाइन किया है, तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि ये साइबर सिक्योरिटी का क्लास है। इसमें हम लोग सबको साइबर सिक्योरिटी में जो कैसे एथिकल हैकिंग करते हैं वो हम बताते हैं एंड इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन, शायद मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ग्रेजुएशन में हैं अभी या ग्रेजुएशन नहीं किया है। तो you don't worry whatever is your qualification, what is your educational background, आप इसको करते रहिए। आपका ग्रेजुएशन अगर आप मान लीजिए आपको करना है तो हमारी इस टीम में से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप कहाँ से ग्रेजुएशन कीजिएगा। तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं उस व्हाट्सएप जिस ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है। ओके महेश? जी सर। ओके, ठीक है। ओके देन ओके सर, थैंक यू। ओके सर, आई विल कंटिन्यू। ओके गुड। Okay, everyone then. Sorry, anybody Yes, sir. saying? ओके सर। Okay, we will continue from next week. But in the meanwhile, all of you go through all the topics what we are covering, what we have already covered, and make sure you ask questions. Make sure you do practice. Make sure
that you try to replicate all the things what we had gone through during the classes and come up with the new ideas कि हाँ मैंने ये भी किया था आपने मुझे नहीं बताया. So we will cover it. Okay. और वो मेरे साइड से एक असाइनमेंट जो है आप सबको ही कोशिश कीजिएगा, एक असाइनमेंट में सब कुछ कवर हो जाएगा. कोशिश ये करना है कि सबके पास जो है व्हाट्सएप का नंबर है, सब कोई व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन हम लोग तो इंडिया में है, आलोक सर यूके में है. कुछ भी मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे तो आलोक सर तक कैसे पहुंच रहा है इसका एकदम डिटेल में एनालिसिस करके आना है विद द हेल्प ऑफ गूगल, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. कि अगर कोई यूके में है, अगर मैं व्हाट्सएप पे उसको हाय लिख रहा हूँ तो हमारा हाय कैसे कैसे किस किस रास्ते और क्या क्या परेशानियों को झेलते हुए यूके में लैंड कर रहा है. अगर इसको आप समझ गए ना डिटेल तरीके से तो ये पूरा आज का क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगा. सर जी. Okay, everyone. Thank you so much. Have a nice weekend and take care. सर जी. See you in another class, next class. सर जी. Bye bye. हेलो. बाय एवरीवन. Bye. सर, कैन यू हियर मी? हाँ Yes, महेश, Mahesh. Yes, please, महेश please कुछ go ahead. बोल Sir, I tell me suggest a topic for a beginner. I search on YouTube and see this. You are not audible properly. Can you please come to the right good network and talk? Yes, sir. I tell you. Please you tell me a topic for a beginner. I search on YouTube and see this. So can someone share my YouTube video to Mahesh in that WhatsApp group, please? How many of नहीं you सर, are? मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी कोई एक टॉपिक सजेस्ट करिए जिसको मैं YouTube पर देखूंगा एज अ बिगिनर. यस यस. सो हमने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, वहां पे हमने फर्स्ट क्लास से रखा हुआ है सारी चीजें. तो आप उस चैनल को गो थ्रू कीजिए, क्लास 1 से पढ़ना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए. ठीक है. ओके सर, उसमें पूरा वीडियो है. हाँ हाँ जी. उसमें पूरा वीडियो है और वो जो टॉपिक आप ढूंढ रहे हो ना वो सारा असाइनमेंट टॉपिक सब वहीं दिख जाएगा. सर इस ग्रुप में तो कुछ भी नहीं है. मेरा पूरा चैट खाली है. आज जो आप एसएमएस किए वही दिख रहा है. हाँ अब जाएगा आपके पास सारा. अभी कोई YouTube का चैनल भेज प्लीज इस ग्रुप में. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. बाय. बाय.